Good morning, students. Now, today's part of modern periodic table is general electronic configuration of four blocks of elements. In the modern periodic table, there are four blocks of elements: S block element, P block element, D block element, and F block elements. So, general electronic configuration of S block elements. S block elements belonging to group first and second. P block elements belonging to group 13 to 18. Group 18 elements are known as inert gases, noble gases, because of they shows the stable electronic configuration except helium. Group 18 element shows the stable electronic configuration because of their octets are completely filled, except helium, because of helium shows complete duplicate. And the element belonging to group 13 to 18 are known as P block elements. D block elements, the element belonging to group 3 to 12 are known as D block elements. And last one, there are two series of elements are placed at the bottom of the main periodic table and they are known as F block elements. So there are two series, lanthanide series and actinide series. Lanthanide series includes group of 14, lanthanide series includes 14 elements and actinide series includes 14 elements. Now, according to the blocks of elements, they show the different general electronic configuration. First of all, the general electronic configuration of S block elements. S block elements, group first elements are known as alkali metal and group second elements are known as alkaline earth metals. Alkali metal containing 1 electron in its valence shell and alkaline earth metal containing 2 electron in its valence shell. So that's why the general electronic configuration of S block element is NS122. NS122, this is the general electronic configuration of S block element. Now P block element. P block element containing belonging to group 13 to group 18. So there are 6 groups including P block elements. So 6 groups require 6 electrons. So that's why the general electronic configuration of P block element is NS2 NP126. NP126. The general electronic configurations are very important for 12th standard also. Okay. Now the general electronic configuration of D block element belonging to group 3 to 12 and D subshell contains 5 orbitals and 5 orbitals occupied 10 electrons. So that's why totally 10 groups are there for D block elements, and because of that the general electronic configuration of D block element is NS 0 or 2 n minus 1 d 1 to 10. 0 or 2 n minus 1 d 1 to 10. N minus 1 d subshell is known as penultimate subshell. N minus 1 d subshell is known as penultimate subshell. So this is the general electronic configuration of D block element, that is NS 0 or 2 n minus 1 d 1 to 10. F block elements. F block elements are placed at the bottom of the main periodic table. So that's why they shows the general electronic configuration NS2 n minus 1 d 0 or 1 n minus 2 f 1 to 14. N minus 2 f, it is known as pre-penultimate shell or anti-penultimate shell. What is S block element? S block element किसे कहते हैं, P block किसे कहते हैं, D block किसे कहते हैं, F block किसे कहते हैं? The element in which last electron enters into s orbital. जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंट्री करता है उसे कहते हैं S block element. What is P block element? The element in which last electron enters into P subshell और P orbital. P subshell और P orbital. जिस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में एंट्री करता है उसे कहते हैं P ब्लॉक एलिमेंट. तो ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स किससे डिसाइड होते हैं? आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है. अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में एंट्री करता होगा तो उसे कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट.
If the last electron, valence electrons or last electron are enter into d orbital of their outermost shell, this is very important, of their outermost shell, it is known as d block element. Okay, so these are the general electronic configuration of 4 blocks of elements. Now, how does electronic configuration changes down a group in the modern periodic table? Because of, as we move down the group from top to bottom in the modern periodic table, there is addition of new shell. First period containing 2 elements, hydrogen, helium, and first period containing first shell, that is K shell, second period L shell, third period N, K, L, M, N, O. As we move down the group, there is an addition of new shell. So because of that, the electronic configuration changes down a group in the modern periodic table. So answer क्या है देखो, as we move from top to bottom in a group, a new shell gets added successively in the atom of an element. एलिमेंट के एटम में न्यू शेल ऐड हो जाता है as we move down the group from top to bottom. Therefore, the last electron enters in a new shell down the group. That's why the last electron enters in a new shell down the group. Hence, the general outer electronic configuration of the elements in a group remains the same. शेल इंक्रीज हो जाता है लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होती है. हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1. लिथियम की 2s1, सोडियम की 3s1. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं मैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1, रुबिडियम 5s1. सो the general electronic configuration remains the same, but there is an addition of new shell. Electronic configuration changes, but general electronic configuration remains the same. So hence the general outer electronic configuration of elements in a group remains the same. This holds true for group first, second and third elements. In the group 13 to 18, the appropriate inner D and F subshells are completely filled. ग्रुप 13 to 18 अगर हम देखेंगे तो F and D orbitals subshell completely filled होते हैं. In the group 13 to 18, the appropriate inner D and F subshells are completely filled and the general outer electronic configuration is the same down the group 13 to 18. However, in the group 4 to 12, 4 से 12 तक हम जाएंगे तो क्या होता है देखो. However, in the group 4 to 12, the D and F subshells are introduced at a later stage. D and F subshells are introduced at a later stage. Fourth period for D and sixth period for F. कौन सा पीरियड? D ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? फोर्थ पीरियड से. और F ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है? सिक्स पीरियड से. So once again, however, in the group 4 to 12, the D and F subshells are introduced at a later stage, fourth period for D and sixth period for F down the group. As a result, variation in the general outer electronic configuration is introduced only at the later stage down the group 4 to 12. Okay. So this is the answer. अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए देखो. ग्रुप फर्स्ट और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप फर्स्ट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1. लिथियम दिया है, सोडियम दिया है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन की 1s1, लिथियम की 2s1, सोडियम की 3s1. देन ग्रुप सेकेंड एलिमेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2. एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या कही थी, ऊपर दी है NS1 to 2. So group first and group second elements are S block elements. So group second general electronic configuration NS2. बेरिलियम मैग्नीशियम दिया है, बेरिलियम के 2s2, मैग्नीशियम 3s2. ग्रुप थर्ड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2N-1 D1. स्कैंडियम आता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है. ओके, NS2N-1 D1. ओके, स्कैंडियम 4s2 3d1. इटरबियम Y, इटरबियम atomic number 39 5s2 4d1. Then group 13 elements, then general electronic configuration is NS2Np1. NS2Np1 d ऑर्बिटल वहां से निगलेक्ट हो गया. देखो
क्योंकि आउटर मोस्ट शेल दिखाना है हमें, Dn-1 आ रहा है ना, तो एक से कम हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल. सो NS2 NP1, this is the group 13 element, general electronic configuration of group 13 element. So first is boron, second one is aluminium. बोरॉन की है 2s2 2p1, एल्यूमिनियम है 3s2 3p1. Group 14 elements, NS2 NP2, this is the general electronic configuration. First element is carbon, second one is silicon, 2s2 2p2 for carbon and 3s2 3p2 for silicon. Okay, next one, group 15, group 16, group 17, group 18 general electronic configuration देखो. 15 के लिए NS2 NP3, 16 NS2 NP4, 17 NS2 NP5 and 18 stable electronic configuration except helium shows duplet and other inert gases shows octet, complete octet, NS2 NP6 and elements group 13, group 15 nitrogen phosphorus, group 16 oxygen sulfur, 17 फ्लोरीन क्लोरीन एंड 18 नियॉन ऑर्गन. आगे भी एलिमेंट है लेकिन हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट नहीं दिए हैं बुक्स में. ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, S block, P block, D block and F block. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 4 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स. क्या है देखो क्वेश्चन पहले, why elements of group first and group seconds are known as S block elements. Why elements of group first and group second are known as S block element. अभी मैंने definition बताई. What is S block element? The element in which last electron enters into S orbital of their outermost shell. S orbital of their outermost shell, it is known as S block element. So the subshell in which the last electron enters decide the block to which the element belongs. लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंट्री करता है उससे डिसाइड होता है वो एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है. ओके, इन ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस सबशेल. ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फील्ड होता है, एस सबशेल में फील्ड होता है, इसलिए उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट. देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू विच ग्रुप constitute P block and why. कौन से ग्रुप के एलिमेंट को P ब्लॉक कहते हैं, अभी बताया है. 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज P block because of their last electron enters into P orbital of their valence shell. Group 13 to group 18 elements in which the last electron enters into P orbital of their outermost shell, so that's why they are known as group 13 to group 18 elements are known as P block elements. Okay, so elements belonging to group 13 to 13, 14, 15, 16, 17 and 18 constitute P block because the last electron in the P block elements is filled in P subshell, as P subshell contains 3 degenerated P orbitals. Which P orbitals? Px, Py and Pz. As P subshell contains 3 degenerate P orbitals, it can accommodate up to 6 electrons. One orbital accommodates 2 electrons, so therefore 3 orbitals accommodate how many electrons? 6 electrons. Okay, so therefore the P block elements belonging to 6 groups, that is group 13, 14, 15, 16, 17 and 18, in which last electron enters in P subshell, constitute P block elements. So which groups elements are known as P block? 13 to 18 groups elements are known as P block elements. Okay, now give a reason. Helium is the first element of group 18. हेलियम यह ग्रुप 18 का पहला एलिमेंट है, लेकिन हेलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंट्री करता है, तभी भी उसे पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं. हेलियम का देखो ना, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलियम? 1s2. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 1s सबशेल, बट टिल इट इज नोन एज p block element because of it shows the complete duplet. The stable electronic configuration, the element shows stable electronic configuration are placed in group 18 elements. जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है उसे ग्रुप 18 में फील्ड किया जाता है, फील्ड किया हुआ है. कौन से? नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. दीज एलिमेंट शोज कंप्लीट ऑक्टेट, बट हेलियम शोज ड्यूप्लेट. ड्यूप्लेट ऑल्सो इट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आंसर क्या है देखो, रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेलियम इज 1s2
which indicates that it has stable electronic configuration, that is a complete duplet. हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 1s सब सेल कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सो इट शोज कंप्लीट ड्यूप्लेट. द पी ब्लॉक एंड्स विथ ग्रुप 18 विच इज अ फैमिली ऑफ इनर्ट गैसेस. 18 ग्रुप एलिमेंट में जो एलिमेंट होते हैं, 18 ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसे कहते हैं इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, स्टेबल ग्रुप एलिमेंट्स, stable elements because of they show stable electronic configuration. Inert gases having stable electronic configuration, complete octet except helium. फिर से देखो आंसर क्या है. Electronic configuration of helium is 1s2 which indicates that it has a stable electronic configuration, that is complete duplet. Helium shows complete duplet but other element shows complete octet. The p block ends with group 18 which is a family of inert gases having stable electronic configuration, that is complete octet except helium. So that's why reason क्या है, क्या क्वेश्चन था, give reason. Helium which is the first element of group 18 element is placed, group 18 is placed in p block even though its last electron enters in s subshell. मैंने बताया, शुरू में ही बताया, उसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, एंट्री करता है, तभी भी उसे पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इट शोज कंप्लीट ड्यूप्लेट. सो दैट्स व्हाई द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एलिमेंट शोज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस इन ग्रुप 18 एलिमेंट्स. ओके, देयरफॉर हीलियम इज प्लेस विथ ग्रुप 18 एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इवन दो इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल. उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंट्री करता हुआ तभी भी उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इट शोज स्टेबल ड्यूप्लेट. ओके, नेक्स्ट वन. देर आर टोटल 10 ग्रुप्स इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. वाई? बिकॉज ऑफ डी सबशेल कंस्टिट्यूट 5 ऑर्बिटल्स. डी सबशेल के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5. कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. ईच ऑर्बिटल हैज कैपेसिटी ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 electrons. So therefore 5 orbitals has capacity of how many electrons? 10 electrons. So 5 orbital को 10 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो फिर 5 ऑर्बिटल को 10 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंट्री करेंगे, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप होते हैं? 10. ओके, तो रीज़न मैंने ईजिली बताया. अभी यहाँ पर एग्जैक्टली रीज़न क्या है, आंसर क्या लिखना है, देखो. देर आर टोटल 10 ग्रुप्स इन द डी ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एक्सप्लेन. The D block in the modern periodic table is formed as a result of filling of last electron in d orbital. D block element में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फील्ड होता है? d orbital में, इसीलिए उसे कहते हैं D block element. The D block in the modern periodic table is formed as a result of filling the last electrons in d orbital. As there are 5 orbitals in d subshell. डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5. उसका नाम भी बताया मैंने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर. सो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सक्सेसिवली बी अकोमोडेटेड. हेंस 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे? 10. हेंस there are total 10 groups in the D block of the modern periodic table, that is group 3 to 12. लिखोगे ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, पूरे टोटल ग्रुप कितने हो गए? 12 ग्रुप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 d ऑर्बिटल. n-1 d, इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज नोन एज n-1 d? इट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल. The last electron enters a n-1 d orbital only after the ns subshell is completely filled. Explain. ns subshell जब तक completely filled नहीं होता तब तक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंट्री नहीं कर सकते. n-1 d देखो ना, 4s और 3d, इसमें अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल से पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करेंगे? जिस सबशेल की एनर्जी लोअर होगी, the orbital, the subshell having lower energy, electrons are enters into that orbitals. Then the electrons are enters into higher energy orbital. तो n 4s और 3d. 4s देखो, 4s. So 4 minus 1 क्या हो जाएगा? 3. 3d n-1 d ना. 4s के बाद कौन आता है? 3d. So 3d क्या है? पेनल्टीमेट शेल है. कैसे पेनल्टीमेट? 4 minus 1 that is 3. So that's why 3d.
Okay, so a d subshell is present in the shells with n is equal to or greater than 3. डी सब शेल इज प्रेजेंट इन द शेल. कौन सी शेल में डी सब शेल प्रेजेंट होता है? n इज इक्वल टू 3 या फिर ग्रेटर दैन 3 होगा, उसमें ही डी सब शेल प्रेजेंट होता है. देखो 3D 4D 5D 6D 7D, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 3, दैट इज 4 5 6 7, it is greater than 3. So d subshell is present in the shells with n is equal to 3 or greater than 3. And according to the n plus l rule, n plus l rule देखा है, n means principal shell number and l means azimuthal quantum number. Principal quantum number है azimuthal quantum number. So for s subshell l is equal to 0, p subshell l is equal to 1, d subshell l is equal to 2 and f subshell l is equal to 3. And n is equal to principal quantum number, n is equal to 1 2 3 4 5 6 है ना. So according to n plus l rule, the energy of ns orbital is less than that of n minus 1 d orbital. As a result, the last electron enters a n minus 1 d orbital only after ns subshell is completely filled. जब तक ns subshell completely filled नहीं होता तब तक n minus 1 d में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर नहीं सकते, बिकॉज ऑफ ns subshell having lower energy than n minus 1 d subshell according to n plus l rule. Okay, next question. Expected outer electronic configuration of europium is expected outer electronic configuration or not observed. Expected observed electronic configuration of europium is 6s2 4f6 5d1. However, it exhibits different than expected outer electronic configuration. However, it exhibits different than expected outer electronic configuration. Observed electronic configuration अलग आएगी. देखो, when s orbital is more stable, s subshell stable कब होता है? जब s subshell में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. p subshell कब स्टेबल होता है? p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तब वो स्टेबल होता है. d सबशेल कब स्टेबल होता है? d सबशेल व्हेन इट इज कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड. p सबशेल भी कंप्लीटली फील्ड होगा या फिर हाफ फील्ड होगा तो वो स्टेबल होता है. p सबशेल इज मोर स्टेबल व्हेन इट इज कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड. d subshell is more stable when it is completely filled or half filled, and f subshell is more stable when it is completely filled or half filled. f subshell containing 14 electrons और 7 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6. तो उसे स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? स्टेबल मीन्स हाफ फील्ड, 7 इलेक्ट्रॉन मीन्स स्टेबल ना, हाफ फील्ड ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. इसलिए 5d में से 1 इलेक्ट्रॉन 4f में चला जाता है और 4f में चले जाने के बाद 4f 7 हो जाता है और 5d 0 हो जाता है, तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है. इसलिए एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम इज डिफरेंट देन द ऑब्जर्व्ड. तो देखो ऑब्जर्व्ड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम इज, ऑब्जर्व्ड क्या है यूरोपियम की? ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम इज 6s2 4f7 5d 0. 4f ऑर्बिटल 4s subshell stable हो गया because of it containing 7 electron. In the observed electronic configuration of europium, 4f subshell is half filled, which is a highly stable configuration. Therefore, observed electronic configuration of europium is different than expected. Okay. Next question. Name the two series that constitute f block. कौन से एफ ब्लॉक की 2 सीरीज है? लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स. ओके, तो उसके नाम लिखने हैं. नेम द 2 सीरीज दैट कंस्टिट्यूट एफ ब्लॉक. द एफ ब्लॉक कंस्टिट्यूट 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक कंस्टिट्यूट 2 सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स. लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज को कहते हैं 4f सीरीज. लैंथेनाइड सीरीज आर नोन एज 4f सीरीज एंड 4f सीरीज कंटेनिंग एलिमेंट्स. 4f series lanthanide atomic number 57 from cerium to lutetium. लैंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ होता है? सेरियम से शुरुआत होती है. सेरियम का एटॉमिक नंबर है 58 टू लुटेटियम आखिरी एलिमेंट लुटेटियम का एटॉमिक नंबर है 72. So these elements are known as 4f series elements, lanthanide series elements.
lanthanide series elements are known as 4f series elements. So 4f series, that is lanthanide, atomic number 57, from cerium 58 to lutetium 72. Outer electronic configuration of 4f series is, 4f series की outer electronic configuration क्या है? 4f 1 to 14, 5d 0 or 1 and 6s2. This is the जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड सीरीज. देखो लैंथेनाइड सीरीज की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f 1 to 14, 1-14 मीन्स 1 to 14, 5d 0 or 1, 6s2. Okay, so this is lanthanide series. Now actinide series. Actinide series are known as 5f series. So 5f series actinides, atomic number 89, includes elements from thorium, atomic number 92, lawrencium, atomic number 103. थोरियम एक्टिनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स है. कहाँ से कहाँ? थोरियम से शुरू होता है, पहला एलिमेंट थोरियम और आखिरी 14 एलिमेंट lawrencium, atomic number 103. Okay, so these actinide series are known as 5f series, and the outer electronic configuration of 5f series is 5f1 to 14. यहाँ पर है 5f1 to 14, 6d 0 और 1, 7s2. 7s2 जीरो कब होगा? 6d में. जब f में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब 6d में से एक इलेक्ट्रॉन 5f में चला जाएगा और 6d में 0 हो जाएंगे. इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर 5f 1 to 14, 6d 0 और 1, 7s2. ओके, सो दे आर प्लेस वन बिलो द अदर. पहला लैंथेनाइड है, उसके बाद एक्टिनाइड सीरीज है, वन बिलो द अदर. ओके, नाउ विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट पीरियड, बिकॉज ऑफ फर्स्ट पीरियड कंटेनिंग 2 elements. Second and third period containing 18 elements. Fourth and fifth period containing 18 elements, and sixth and seventh period containing 32 elements. So shortest period in the modern periodic table is first period. And which block is placed separately at the bottom of main periodic table? A block is placed separately at the bottom of main periodic table. Shortest period कौन है? First period is the shortest period. And which blocks is placed separately at the bottom of periodic table? A block is placed separately at the bottom of periodic table. Okay, अभी अगला बहुत ही important सवाल है. How can a period group block of the element determine? किसी भी एलिमेंट का पीरियड, वो एलिमेंट कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, वो डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से रूल है? देखो यहाँ पर, हाउ कैन अ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट डिटरमाइन. किसी भी एलिमेंट का पीरियड ग्रुप और ब्लॉक कैसे डिटरमाइन किया जाता है? पहला पीरियड कैसे डिटरमाइन किया जाता है? देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स पीरियड. आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपको पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है और ब्लॉक कौन सा है वो पता चलेगा. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा. सो आउटर मोस्ट शेल में एन की वैल्यू देखनी है. एन इज इक्वल टू 3 आया तो थर्ड पीरियड, एन इज इक्वल टू 4 आया तो फोर्थ पीरियड, एन इज इक्वल टू 1 आया तो 1s. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1. तो यहां पर s के पहले कौन है? 1 ना. सो एन इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड. ओके, सो पीरियड कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल करस्पॉन्ड्स टू द पीरियड ऑफ द एलिमेंट. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स n, स्मॉल n. Principal quantum number of the valence shell corresponds to the period of the element. For example, principal quantum number, that is n, of the valence shell 3s1. 3s1 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम की. What is the electronic configuration of sodium? Atomic number 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. वैलेंस शेल में कितना है? वैलेंस शेल कौन है? 3s ना. सो यहाँ पर n is equal to 3 है. n is equal to 3. So therefore sodium belongs to which period? Third period. 3s1 of sodium. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर. So is n is equal to 3 for sodium. This corresponds to the third period. So पीरियड कैसे डिटरमाइन करते हैं? आउटर मोस्ट शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो उसका पीरियड होगा. ओके, नाउ ब्लॉक. ब्लॉक कैसे डिटरमाइन किया जाता है? कौन से ब्लॉक से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंट्री करे वो देखना है. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच सबशेल. जिस सबशेल में एस में एंट्री करता होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट. आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंट्री करता होगा तो एस.
पी में करता होगा तो पी, डी में करता होगा तो डी, एंड एफ में करता होगा तो एफ. ओके, सो ब्लॉक the subshell in which the last electron enters corresponds to the block of the element. Last electron enters corresponds, indicates the block of the element except helium. हेलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है लेकिन वो पी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि हेलियम शोज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कंप्लीट ड्यूप्लेट, and the element shows which shows stable electronic configuration are placed in group 18 elements. Okay, so except helium, example स्कैंडियम. स्कैंडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो किस में एंट्री कर रहा है. आखिरी इलेक्ट्रॉन मीन्स 4s नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे उसके बाद 3d में ना. 4s की एनर्जी कम है 3d से, इसलिए 4s कंप्लीट हो जाने के बाद 3d में आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया है. स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. so आखिरी last electron enters into 3d orbital, so that's why scandium is d block element. Okay, so in which last electron enters into 3d subshell, it corresponds to d block element. now group कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखो ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए 3 रूल्स है यहाँ पर. द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखना है. एस ब्लॉक के लिए अलग है. ग्रुप डिटरमाइन कैसे किया जाता है, एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए और डी ब्लॉक के लिए यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं. द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और पेनल्टीमेट शेल. पेनल्टीमेट मीन्स n-1 शेल. n-2 मीन्स प्री पेनल्टीमेट, n-2 means pre-penultimate or anti-penultimate, and n-1 means penultimate. Okay, so first for s block element के लिए ग्रुप कैसे डिटरमाइन किया जाता है, देखो for s block element group number is equal to number of valence electrons. s block element के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो देखने हैं. सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट A1 है ना, 3s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है. मैग्नीशियम कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, 3s2. 3s इज द वैलेंस शेल और 3s इज द वैलेंस शेल एंड 3s शेल कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज अ s ब्लॉक एलिमेंट. ओके, सो s ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. p ब्लॉक एलिमेंट के लिए देखो ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं. फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट. 18 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट. ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, ns2 np6, ns2 np, समझो अगर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 np2, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो 18 माइनस 4 14, तो वो एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा, 14 में. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी ns2 np5, ns2 np5, s में 2 है और p में 5 है, 2 + 5 7, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1. सो देयरफॉर 18 माइनस 1 17. So that element belongs to group 17 elements. Okay, so for p block element group number is equal to 18 minus number of electrons required to complete octet. And for d block element के लिए ग्रुप नंबर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, देखो 2 प्लस नंबर ऑफ n-1 d इलेक्ट्रॉन्स. d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखने हैं, उतने इलेक्ट्रॉन में 2 ऐड कर देना है. 2 प्लस डी में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर देना है. फॉर एग्जांपल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. सो 2 + 6 8. सो आयन बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 8th ग्रुप, बिकॉज ऑफ 2 + 6 दैट इज 8. सो आयन Fe बिलोंग्स टू 8th ग्रुप. मुझे बताओ अभी कॉपर के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9. अगर हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कॉपर शोज एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल है. ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑब्जर्व क्या है, 4s2 3d9,
एंड एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1 3d10। तब क्या करना है, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10 में 1 ऐड कर देना है क्योंकि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया। ओके, सो दिस इज द ग्रुप नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का कैसे डिटरमाइन करना है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी सबशेल। ओके, अभी यहां पर एग्जांपल दिए, देखो वो एग्जांपल सॉल्व करने हैं। पहला, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। एलिमेंट दिए हैं, उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन देम एंड आइडेंटिफाई period, group and blocks in the modern periodic table which they belongs। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में और कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करने। पहला है हेलियम। हेलियम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2। इट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ कंप्लीट ड्यूप्लेट एंड द एलिमेंट्स विच शोज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 18 ग्रुप। सो पहले देखो हमें ब्लॉक बताना है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस में, लेकिन ये एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है बिकॉज ऑफ कंप्लीट ड्यूप्लेट, इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सो पी ब्लॉक एलिमेंट है। अभी यहां पर n इज इक्वल टू कितना है 1s ना, 1 है, n इज इक्वल टू 1, सो हेलियम बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड। हेलियम बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड। कौन से ग्रुप में है वो, कौन से ग्रुप में है, 18 group because of it is it shows complete duplicate na, so that's why helium belongs to 18 group। it is a first, it is present in first period and block, which block element, p block element because of complete duplicate। okay, तो आंसर देखो, here n is equal to 1, therefore helium belongs to first period। helium belongs to first period। the shell n is equal to 1 has only one subshell 1s, so therefore outer electronic configuration 1s2 of the helium shows maximum capacity of 1s, the complete duplicate, therefore helium is placed at the end of first period in the group 18 of inert gases, so helium belongs to p block। okay, अब यहाँ पर xenon दिया है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है 5s2 5p6। यहाँ पर अभी मुझे पीरियड कौन बताएगा, n इज इक्वल टू कितना है 5 ना, सो कौन से पीरियड में है जेनॉन, 5th पीरियड में है। ग्रुप में देखो कौन से ग्रुप में होगा, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं पी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं, 18 माइनस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कंप्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने लग रहे हैं, नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड है, सो दैट्स वाई 18 माइनस 0, सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 18। ओके, एंड कौन सा ब्लॉक है ये, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है, पी में, सो दैट्स वाई जेनॉन इज पी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियड फर्स्ट, सॉरी पीरियड 5th, कौन सा पीरियड का है जेनॉन, 5th पीरियड, ग्रुप 18 और ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट सल्फर। सल्फर का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री कर रहा है, 3s2 3p4, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू 3p ऑर्बिटल, सो दैट्स व्हाई इट इज अ p ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर पीरियड कौन सा है, n इज इक्वल टू 3s एंड 3p, 3s 3p, so n is equal to 3, so that's why sulfur present in third period, and because of last electron enters in p orbital, sulfur is a p block element। ग्रुप कौन सा आएगा, देखो ग्रुप के लिए फॉर्मूला क्या है, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू फॉर पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 18 माइनस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6, तो 6 में 2 ऐड करने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, सो 18 माइनस 2 16, सो सल्फर बिलोंग्स टू 16 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड AU और गोल्ड AU, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s1 3d10। यहाँ पर देखो डी की और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D की इलेक्ट्रॉन, 3D नहीं, वहाँ पर 4D होना चाहिए, गोल्ड है ना, 4D नहीं 3D दिया है, गलत हो गया है, वहाँ पर 4D होना चाहिए, 4D भी नहीं, 6s दिया ना, 5D होना चाहिए वहाँ पर, 5D 3D गलत हो गया है वहाँ पर गोल्ड के लिए, 5D। ओके, सो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है बताओ, n इज इक्वल टू 6 बिकॉज ऑफ 6s ना, n इज इक्वल टू 6 फॉर AU, वो 3D गलत हो गया है, वहाँ पर 3D की जगह पर 5D करना है।
Okay, so here n is equal to 6, therefore gold belongs to 6 period. गोल्ड्स कौन से पीरियड में बिलोंग करता है? 6 पीरियड. द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AU इज 6s1 5d10. यहाँ पर देखो 5d10 लिखा है. ओके, 6s1 5d10 implies that 1 + 10, क्योंकि 6s में एक इलेक्ट्रॉन है, 6s में एक ही है ना, 6s में 2 होते तो 2 + d में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर देते. तो यहाँ पर 6s में 1 है, इसलिए 1 + d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. सो देयरफॉर 1 + 10 दैट इज 11. So because of 11 electrons are filled in the outer orbital to give AU, therefore AU belongs to which group? 11th group. So gold कौन से पीरियड में है? 6 पीरियड में. कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है. और कौन से ग्रुप में है? 11th ग्रुप में. अभी यहाँ पर इजीली सॉल्व किए देखो प्रॉब्लम्स. प्रेडिक्ट ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स. इतना वक्त हो गया, बहुत वक्त हो गया. ये हम कल देखेंगे. थैंक यू. 40 मिनट्स हो गए. नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे. ओके.